Hi, hello, good morning. Uh, so we have started chapter 3, and on that chapter 3, we are going to see we had seen the layout in Android Studio. Okay, so layout is nothing about how we can arrange the module in individual web page. ये यही चीज मैं बार बार repeat कर रहा हूँ. That's why because of you have to clear the concept in your mind that what is the actual concept of layout in Android Studio. So layout is nothing about how we are fashioned the things in our web page nahi, in our software product, okay, in our Android application. Okay, so we had done with the linear layout and I guess absolute layout. So linear layout में क्या था, we are fashioned those module in linearly मतलब एक sequence पे fashion कर रहे हैं one by one, either it can be horizontally or vertically. Okay, and in the absolute layout we set those modules, those views using the x and y coordinate. So that x and y coordinates shows the exact location of the location means जहाँ पे वो place होने वाला है, screen location of that individual view. Okay, so let us see our next topic, our next layout module, which is frame layout in, okay, so Android frame layout. So frame layout is designed, and as I said in the last lecture, now we are directly focusing on the layout, the actual layout concept, because all the layout is all the nature of layout is same as in Android Studio. So we now we are too familiar about the concept of layout in Android Studio. So instead of the wasting our precious time on looking over the same concept again and again, we directly jump onto the exact point, on the main point. Okay, so frame layout is designed to block out an area on the screen to display a single item. Means what? Means it is going to block out on entire area to display the single item. Okay, because the children plays the important role. Suppose वी आर क्रिएटिंग कौन सा एनुअल एप्लीकेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. यू हैव सीन द डिज्नी प्लस हॉटस्टार, राइट? सो वेन एवर यू क्लिक ऑन दैट डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सो द बैकग्राउंड विल बी टू ब्लरी, लाइक एक ब्लू डार्क ब्लू कलर का शेड आता है, एंड आफ्टर दैट द लॉन्चर आइकॉन विल अपीयर. ओके, सो that module, that layout is nothing about our frame layout. Okay, on that module the web developer, the Android web developer uses the frame layout. So इसमें क्या होता है, block out an area on the screen to display a single item. Clear? Generally frame layout should be used to hold a single child view. Okay, so it can hold one single child view because it can be difficult to organize child views in a way that's scalable to different screen sizes. So means we use the Redmi, we use the Motorola, we use Samsung. So depending on the screen size, our Android application will be our Android application views will be vary. Okay, so to hold that vary scenario, you catch this, you can use this frame layout to reduce the complication whenever you changes the screen size, whenever you changes the devices. Okay, so that's scalable to different screen sizes without the children overlapping each other. और इससे क्या होगा, if I am using the frame layout, so the overlapping of children will not be affecting if we are preferring this such kind of layout. Okay, so basic क्या है, एकदम basic. तो दो लाइन में क्या है, you can however add multiple children. तो आप लोग इसमें मल्टीपल चिल्ड्रन भी ऐड कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे देखो, ये एक चिल्ड्रन है, सॉरी ये तो अपना पेरेंट विंडो है. ओके, इसमें एक ये हेडर मैंने पुट किया है tutorialspoint.com. ओके, आफ्टर दैट दिस विल बी माई फर्स्ट चिल्ड्रन, ये बैकग्राउंड इमेज. ओके, आफ्टर दैट ये सेकेंड जो इमेज है, हाँ, दैट इज माई अनदर चिल्ड्रन, एंड दिस टेक्स्ट व्यू या फिर लेबल जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट लेबल विल बी माई अनदर children in this entire parent window. Clear? Okay, so you can add multiple children to a frame layout and control their position. Okay, now it is very important to set the position according to our wants, according to our needs. Okay, सपोज कि मुझे यहाँ पे चाहिए राइट कॉर्नर में, तो यहाँ पे वो सेट करना ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है. बट यूजिंग फ्रेम लेआउट द कॉम्प्लिकेशंस विल बी टू रिड्यूस. within the frame layout we can simply क्या बोल सकते हैं, we can simply move this item, move these views
as per our wants by assigning gravity to each child. Okay, now gravity means what? Gravity, देखते ठीक है, आगे देखते हैं जब वो आएगा एक्चुअल कंसेप्ट. Using the Android layout gravity attribute, so we can use this Android layout gravity like in the previous layout we use this Android layout x coordinate, Android layout y coordinate. याद आ रहा है? Okay, so similarly here we can use the Android layout gravity attribute instead of the x and y, because the frame layout is all about the setting of gravity of children to help out the position, to help out the location through our screen. Okay, तो यहाँ पे देखो ये टॉप रिलेटिव लेआउट है. हाँ, ये उसके बाद ये फ्रेम हेडर है, फ्रेम लेआउट जैसे हम लोग बोलेंगे. उसके बाद ये इमेज व्यू बिग, ये बिग इमेज व्यू है. उसके बाद ये स्मॉल इमेज व्यू है. ठीक है, मतलब इस पे ही मैं बैकग्राउंड पे एक और इमेज ऐड कर रहा हूँ. दैट इज नथिंग अबाउट अवर फ्रेम लेआउट. एंड मतलब ये सपोज रूट लेवल है, ये पेरेंट लेवल है, ये ग्रैंडफादर, ये फादर और ये सन. ठीक है, ये जो टेक्स्ट भी दिख रहा है ना हमें फ्रेम लेआउट डेमो, दैट विल बी माई सन या फिर चिल्ड्रन. ओके, सो ब्रांचिंग हो रहा है यूजिंग दिस फ्रेम लेआउट. ओके, नाउ सी द as we have seen in the last layout, the id attribute is common in all the layout and id is used to uniquely identify each and every layout. ठीक है, आईडी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, जो यूनिक आईडी उसे प्रोवाइड करने वाला है. ठीक है, क्योंकि मेरा अभी हम लोग तो कॉलेज लेवल पे एक दो पेज के प्रोग्राम बनाएंगे, मैक्सिमम 10 पेज के प्रोग्राम बनाएंगे. बट whenever you are going to, whenever you are dealing with the big project, the industrial, the actual project, it contains a lot of Android pages. ठीक है, वो एपी के सपोज हम लोग व्हाट्सएप कंसिडर करें तो व्हाट्सएप के लिए बहुत बड़ा कोड होगा. एंड ऑन दैट कोड यू हैव टू ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी लेआउट, ईच एंड एवरी मॉड्यूल, ईच एंड एवरी व्यू इन योर प्रोजेक्ट. ओके, सो वो ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग उसे यूनिकली आइडेंटिफाई, जैसे कि आपका रोल नंबर नहीं, एनरोलमेंट नंबर है. ठीक है, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में अवेलेबल है उससे. सो आईडी प्लेज द सेम रोल इन दिस एंड्रॉइड मॉड्यूल. ओके, देन द नेक्स्ट इज फोरग्राउंड. तो फोरग्राउंड मतलब क्या? बैकग्राउंड मतलब जो बैक में है और फोरग्राउंड मतलब जो आगे वाला, जो मुझे डिस्प्ले होने वाला है आगे वाला. It defines the drawable to draw over the content and possible values, maybe color value. Okay, so it can be used to set the color on our foreground in the form of RGB, मतलब रेड ग्रीन ब्लू जो रहेगा वो, या फिर ARGB. बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पे. आफ्टर दैट एंड्रॉइड फोरग्राउंड ग्रेविटी. ओके, that will be my major attribute in frame layout. Like gravity plays the important role in frame layout. Okay, so this defines gravity to apply the foreground drawable. अभी ये डिसाइड करने वाला है कि फोरग्राउंड ड्रॉएबल कहाँ पे एग्जैक्टली वो मुझे दिखने वाला है स्क्रीन पे. ओके, सो द डिफॉल्ट वैल्यू इज फिल, मतलब वो फिल रहने वाला है, बाय डिफॉल्ट फिल रहने वाला है. एंड पॉसिबल वैल्यू क्या है? टॉप में, तो वो टॉप मैंने डिसाइड किया तो स्क्रीन के टॉप में चला जाएगा. बॉटम, तो बॉटम में लेफ्ट, राइट, सेंटर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो कुछ चाहिए आपको वो हिसाब से आप लोग वो ग्रेविटी सेट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज ग्रेविटी इज नथिंग अबाउट अवर डायरेक्शन, कौन से कोने में आपको वो मॉड्यूल चाहिए. आणि शेवटचा आहे अँड्रॉइड मेजर ऑल चिल्ड्रन. इट डिटरमाइन्स वेदर टू मेजर ऑल चिल्ड्रन और जस्ट दोज इन द विजिबल और इनविजिबल स्टेट व्हेन मेजरिंग डिफॉल्ट टू फॉल्स. आता हे काय आहे? विजिबल और इनविजिबल. विजिबल म्हणजे सपोज मी त्याला विजिबल केलं तर त्या पॉइंटला तो मला दिसणार आहे. अँड इफ आय एम सेटिंग द व्हॅल्यू ॲज इनविजिबल, सो त्या पॉइंटला तो व्हॅनिश होणार आहे. ठीक आहे, तर डिपेंडिंग ऑन दिस व्हॅल्यू वी कॅन सेट द विजिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन. मला सेपरेट चिल्ड्रन दाखवायचे म्हणजे आपण खूप सारे अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन यूज करताना बघितलं असेल की खूप सारे मॉड्यूल आधी दिसतात आणि मग नंतर नाही दिसत. सो दॅट फीचर विल बी ऍक्टिवेटेड युझिंग दिस फ्रेम लेआउट अँड इन द फ्रेम लेआउट युझिंग दिस एंड्रॉइड मेजर ऑल चिल्ड्रन एट्रीब्यूट. ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे देखो वो कोड तो सेम ही है, ये अभी मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला. एज आई सेड इन द लास्ट लेक्चर कि ये कोड, ये बाय डिफॉल्ट कोड रहता ही है, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाता है और इसके बारे में हम लोग ने देखा है सबसे पहले लेक्चर में. ओके, तो द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या सेट कर रहा हूँ, जो मेरी एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल है उसे मुझे अपडेट करनी है. एंड ऑन दैट एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल आई एम डिक्लेयरिंग वन फ्रेम लेआउट. ठीक है, फ्रेम लेआउट मैंने किया. ये एक्सएमएल एनएस क्या है? वो फ्रेम लेआउट लोड करने के लिए जो लाइन है वो, दैट विल बी माई दिस लाइन. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सेट द विड्थ एंड हाइट फॉर द फ्रेम लेआउट. सो फिल पैरेंट मैंने कर दिया. ओके, उसके बाद फ्रेम लेआउट में मैंने दो व्यूज लिए हैं.
फर्स्ट है इमेज व्यू और दूसरा है टेक्स्ट व्यू। इमेज व्यू मतलब यहाँ पे मैं इमेज एक क्रिएट कर सकता हूँ, और दूसरा है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, सो इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे देखो ये एंड्रॉइड का लोगो है ना, दैट विल बी माई इमेज व्यू, और इस पे ये फ्रेम डेमो दिख रहा है वो क्या है, मेरा टेक्स्ट व्यू, जहाँ पे मैं कुछ एंटर कर सकता हूँ। सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज व्यू इज, पहले तो उसका एसआरसी है, मतलब इमेज कहाँ पे है वो, हाँ वो मुझे आपके जो फोल्डर है, आपने जो फोल्डर नया बनाया है एंड्रॉइड का, वहां पे आपको वो पुट करना है एसआरसी फाइल। आफ्टर दैट स्केल टाइप इज नथिंग अबाउट फिट सेंटर। हाँ, इट प्लेस द सेम रोल एज ग्रेविटी। हाँ, जो काम ग्रेविटी कर रहा है सेम काम यही कर रहा है। फिट सेंटर मतलब वो फिट होना चाहिए सेंटर में, यहाँ से भी इक्वल पॉइंट, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल। फिट मतलब क्या, वो it can fit through my screen from all point of view, from left, right, top, bottom, all point of view. ठीक है, after that I am setting the height and width of the image. तो जो मैंने 250 पिक्सल अप्लाई की है, ओके डन। तो इमेज मैंने रखा, उसके बाद क्या है, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज देखो, क्या है, टेक्स्ट फ्रेम डेमो। ये टेक्स्ट मतलब क्या, जो मुझे डिस्प्ले होने वाला है। ओके, आफ्टर दैट टेक्स्ट साइज, I am declaring the text name, text size, then text style bold किया मैंने, bold मतलब क्या आपको मालूम है। After that height, width, and this is the important property of the in the frame layout which is gravity. So gravity मैंने क्या रखी है, center. So that text view is showing up on the center of my screen because I am setting the property value of the gravity as center. Clear? ओके, नेक्स्ट जो लेआउट है वो देखते हैं अभी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से एक बार देखो, आप लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग ने क्या किया। ठीक है, थोड़ा चाहिए तो वीडियो को स्लो कर दो, स्पीड स्लो कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट लेआउट देखते हैं अभी। ओके, सो द नेक्स्ट इज रिलेटिव लेआउट। ओके, अभी रिलेटिव लेआउट मैं डायरेक्टली क्विक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका, ध्यान से सुनो। रिलेटिव लेआउट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई हाउ चाइल्ड व्यूज आर पोजिशन। रिलेटिव मीन्स क्या, जो इंग्लिश का मीनिंग है रिलेटिव का वही सेम मीनिंग है। रिलेटिव मतलब जो अपने रिलेटिव रहते हैं वो। ओके, सो दोज चिल्ड्रन आर रिलेटिव टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन। क्लियर? द पोजिशन ऑफ ईच व्यू कैन बी स्पेसिफाइड as relative to sibling elements. Sibling means they have the same parent. Okay, so our child has to be arranged, has to be fixed in relative manner. मतलब वो दो सेट हो रहे, मतलब यहाँ पे एक बटन रख रहा हूँ मैं और यहाँ पे इमेज रख रहा हूँ, दो चाइल्ड व्यू है। सो वो दो चाइल्ड व्यू क्या है, एक सिंगल पेरेंट को बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज नथिंग अबाउट अवर रिलेटिव व्यू। ठीक है, मतलब वो दो के बीच में कुछ तो रिलेशन है एंड उसीलिए हम लोग उसे रिलेटिव लेआउट बोल रहे हैं। दैट्स इट, इतना सिंपल है वो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो उसके एट्रीब्यूट, फर्स्ट इज आईडी। आईडी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाइज द लेआउट। ओके, उसके बाद एक ग्रेविटी और इग्नोर ग्रेविटी। सो ग्रेविटी tells us that how an object should position its content according to x and y axis. लाइक फिर वो टॉप हो सकता है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो कुछ भी है वो। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसकी मैंने ग्रेविटी सेट कर दिया टॉप एंड दिस व्यूज कंटेन्स द बॉटम ग्रेविटी। अभी इसमें भी इसकी ग्रेविटी सेंटर है, बट ये इंडिविजुअल मॉडल को मैंने रख दिया लेफ्ट और इसको रख दिया राइट। ठीक है, सो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, वो ग्रेविटी में सेट करने वाला हूँ। एंड तीसरा एट्रीब्यूट है इग्नोर ग्रेविटी। सो दिस इंडिकेट्स व्हाट व्यू शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। सपोज इसकी ग्रेविटी मैंने इग्नोर कर दी, सो दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, दिस पर्टिकुलर व्यू कैन नॉट अफेक्ट अदर पेरेंट या फिर पेरेंट नहीं, अदर चाइल्ड व्यूज, एज दिस इज माई दिस व्यूज कंटेन्स नो ग्रेविटी। ठीक है, सो इग्नोर कर दी ग्रेविटी, सो वो अफेक्ट नहीं करने वाला है। और अगर मैंने ग्रेविटी सेट कर दी है, सो यू कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ दैट इंडिविजुअल व्यू, दैट इंडिविजुअल मॉड्यूल। ओके, सो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल देखेंगे क्योंकि इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट है और बहुत ही इजी एट्रीब्यूट है, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, इतना ही है सिर्फ। लेकिन अराउंड इट विल कंटेन 20 sort of attributes. So in the next lecture वो एकदम शांति से देखते हैं कि वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, और जो टेबल लेआउट है लास्ट टॉपिक है अपना थर्ड चैप्टर का, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है,